لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد. اس سے پہلے کہ کلام کا آغاز کیا جائے، آپ حضرات سے معتبانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محمد احمد ابن نذیر احمد کی روح کو ایصال فرمائیں۔ ایک گزارش اور ہے، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑے آگے ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت نہ ہو۔ ہر آدمی آ کے پیچھے بیٹھنا چاہتا ہے، تھوڑا آگے ہو جائے صلوات پڑھتے ہوئے۔ خداوند عالم سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین، پسندیدہ دین، عظمت والا دین دین اسلام ہے۔ اسلام یعنی امن کا دین، شانتی کا دین، بھائی چارے کا دین، اخوت اور محبت کا دین، نفرت اور ظلمت کو دور کرنے والا دین، ایسا دین کہ
کہ جس کی تبلیغ کے لیے ہم نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کو ہادی بنا کر تمہارے درمیان میں بھیجا۔ یاد رکھیے کائنات کے اندر مذہبوں کی بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، ہر آدمی کا مذہب الگ ہے، ہر بستی کا مذہب الگ ہے، ہر قوم اور قبیلے کا مذہب الگ ہے، اور اس بات کو ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں متعدد خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے، اور انسانیت کا عالم یہ ہے کہ اس نے جس چیز سے خوف محسوس کیا اس کو اپنا رب بنا لیا۔ سانپ سے ڈرا تو اس کو پوجنے لگا، آگ کا خوف ہوا تو اس کی عبادت کرنے لگا، کہیں کوئی فائدہ نظر آیا تو اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ انہی مذہبوں کے درمیان ایک مذہب ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ دین۔ اور یہ یاد رکھیے اسلام خدا کا پہنچایا ہوا آخری مذہب ہے، آخری دین ہے، اللہ کی ہوئی آخری گفتگو ہے، خدا کا کیا ہوا آخری کلام ہے، جس کے بعد خدا نے اپنے کلام کو ختم کر دیا۔ اب سلسلہ وحی نہیں رہا، اور قدرت نے یہ کہہ کے دین کی سند دے دی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اب تمہاری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو اس دین کے اندر موجود نہ ہو۔ کبھی کبھی آج یہ سوال میڈیا پہ چھائے رہتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں، صاحب سناتن دھرم بہت پرانا ہے، اسلام زیادہ پرانا ہے۔ آج یہ سوال چل رہا ہے نا کہ سناتن دھرم سب سے پہلا ہے، فلاں دھرم سب سے پہلا ہے، اسلام بعد کا دھرم ہے۔ تو دیکھیے ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کروں، اسلام وہ دین ہے کہ جس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اسلام کی زندگی بڑی قدیم ہے۔ اسلام کی زندگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، میں چند جملوں میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ اسلام کب سے ہے اور کب سے اسلام کا وجود آیا۔ تو سنیے، کائنات میں آدم نہ تھے، اسلام تھا، کائنات کے ذرے نہ تھے، اسلام تھا، چاند نہ تھا، اسلام تھا، سورج نہ تھا، اسلام تھا، جنت نہ تھی، اسلام تھا، کوثر نہ تھا، اسلام تھا، سلسبیل نہ تھی، اسلام تھا، لوح و قلم نہ تھے، اسلام تھا، زمین کا فرش نہ تھا، اسلام تھا، آسمان کا شامیانہ نہ تھا، اسلام تھا، جمادات نہ تھے، اسلام تھا، نباتات نہ تھے، اسلام تھا، حیوانات نہ تھے، اسلام تھا، انسانات نہ تھے، اسلام تھا۔ مگر ہمارے سامنے اسلام سرزمین عرب سے آیا کہ جب عرب کی زمین پر ایک آفتاب طلوع ہوا اور اس نے اپنے نور کی کرنوں سے گنگا جمنا کو سیراب کیا، ریگستانوں کو سرسبز کیا، بنجر زمینوں کو آباد کیا، اس نے اس انداز سے اسلام پیش کیا کہ بے غیرتوں کو غیرت دار بنایا۔ اس انداز سے اسلام پیش کیا کہ اس نے بے غیرتوں کو غیرت دار بنایا، بزدلوں کو شجاع بنایا، جاہلوں کو عالم بنایا، قاتلوں کو رحیم بنایا، بھگوروں کو شجاع بنا دیا، اور رہزنوں کو خمس و زکات کا پابند بنایا، کافروں کو مسلمان بنایا، مسلمانوں کو سلمان بنایا، اور مسلمانوں کو سلمان بنایا۔ گویا یہ ہدایت کا آفتاب اتنا باکمال تھا کہ جدھر سے گزرتا چلا گیا معجزوں کے انبار لگاتا چلا گیا۔ ایک سوال ہے سے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ اسلام ہمارے سامنے سرزمین عرب سے آیا کہ جب خاتم المرسلین کا نور سرزمین عرب پہ چمکا، اور چمکنے کے بعد اس نے انسانیت کو گمراہی سے نکالا، ضلالت سے نکالا، درندگی سے نکالا۔ اس دور میں چمکا کہ جب انسانیت سسک رہی تھی مگر آہوں کو سننے والا کوئی نہ تھا، انسانیت بھٹک رہی تھی مگر ہدایت کرنے والا کوئی نہ تھا،
اس نے اس انداز سے ہدایت کی کہ خود بھوکا رہا، قوم کو کھانا کھلایا، خود کانٹوں پہ چلا، دوسروں کے راستے میں پھول بکھیر دیے۔ یہ اس انداز سے ہدایت کرتا رہا کہ جو بیگانے تھے انہیں اپنا بناتا رہا، اور دنیا کو بتایا کہ یاد رکھنا دولت معیار نہیں ہے، کردار معیار ہے۔ اور اس نے پیغام دیا کہ اگر کردار نہیں تھا تو مالدار کو بزم سے اٹھا دیا، اگر کردار تھا تو غریب کو سینے سے لگا لیا۔ اور کرے ہمارے سامنے یہ آیا، اور اب جو اس نے اسلام کی تبلیغ کی کیا آواز قدرت آئی میرے حبیب، دیکھو تمہیں دو کام کرنے ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ تمہیں دین کو پالنا ہے، ایک یہ ہے کہ تمہیں دین پناہ کو پالنا ہے۔ اور کرے میرے حبیب تمہاری دو ذمہ داری ہے، ایک تمہیں دین پالنا ہے، دوسرے تمہیں دین پناہ کو پالنا ہے۔ نبی نے کہا پروردگار تیرا بندہ اس کام کے لیے تیار ہے، تیرا بندہ آمادہ ہے۔ اور یہ کہہ کر نبی نے اب دونوں چیزوں کو پالنا شروع کیا، دین کو بھی پالا، دین پناہ کو بھی پالا۔ کس انداز سے پالا آپ کے سامنے عرض کروں، دین نبی کے سینے میں پل رہا تھا، دی پناہ نبی کے سینے پہ پل رہا تھا۔ جو نبی کے زبان سے الفاظ نکلتے تھے وہ دین کی خوراک بنتے تھے، جو نبی کی زبان سے دودھ نکلتا تھا وہ دی پناہ کی خوراک بنتا تھا۔ دین اور دی پناہ دونوں کو ایک ہی باپ نے پالا، دونوں ایک ہی خاندان میں پلے، دونوں ایک ہی سینے پہ کھیلے، دونوں ایک ہی گود میں پروان چڑھے۔ اور جب پروان چڑھے دونوں جوان ہوئے تو دین کا نام اسلام ہو گیا، دی پناہ کا نام حسین ہو گیا۔ اور کرے اب سمجھے آپ جو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا دی است حسین، دی پناہ است حسین، اس لیے کہ دونوں کا مزاج ایک تھا، دونوں کی فطرت ایک تھی، دونوں کی جبلت ایک تھی، دونوں کو پالنے والا ایک تھا۔ وہ فرق اتنا تھا اگر خاموش رہا تو اسلام کہلایا، بول اٹھا تو حسین کہلایا۔ ایک صلوات ہے محمد والے محمد پر۔ دونوں کو نبی نے پالا، دونوں ایک گھر میں پلے، دونوں کی تربیت ایک ہی باپ نے کی۔ اور اب آواز قدرت آئی، نبی پال دیا، دونوں کو جوان کر دیا۔ تو ایک کام کرو، دونوں کا تعارف اور کراؤ، دونوں کو پہچانواؤ، دونوں کا انٹروڈکشن کراؤ، زمانے سے متعارف کراؤ۔ نبی نے متعارف کرایا، کس انداز سے؟ نبی کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ان سے کلام کیا جو خداؤں کو دیکھ کر نہیں مانتے تھے، دیکھ کر نہ ماننے والوں سے غیب کی خبر دی۔ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا میرا بچپن تم نے دیکھا، میرا لڑکپن تم نے دیکھا، میری جوانی تم نے دیکھی، بتاؤ میرے بارے میں کیا رکھتے ہو؟ یہ وہ نہیں ہے کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ جو خدا کا اقرار کرتے ہیں، ان میں ہر ایک کا خدا الگ ہے، جمعے والوں کا خدا الگ ہے، عید والوں کا خدا الگ ہے، دولت مندوں کا خدا الگ ہے، غریبوں کا خدا الگ ہے۔ کیا بتاؤ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا عبداللہ کے بیٹے تو صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ اور کہہ رہے سنتے رہتے جملہ، لیکن ذرا اس کی تشریح میں جائیے گا، کون کہہ رہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو نہیں مانتے۔ کیا میرا بچپن دیکھا، میرا لڑکپن دیکھا، میری جوانی دیکھی، بتاؤ میرے بارے میں رائے کیا ہے؟ تو سب نے کیا کہا عبداللہ کے بیٹے تو صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ اب آپ پڑھے لکھے جملے کی قدر کریں گے۔ صداقت کا تعلق ہوتا ہے زبان سے، امانت کا تعلق ہوتا ہے ہاتھوں سے۔ مشرکوں نے کیا کہا آپ صادق بھی ہے، آپ امین بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کافر و مشرک کو محمد کی زبان پہ بھی اعتبار ہے، محمد کے ہاتھوں پہ بھی اعتبار ہے، یعنی زبان کو سچا مانتے ہیں، ہاتھوں کو امین مانتے ہیں۔ مگر میں کیا کروں، غدیر کے میدان میں محمد نے زبان سے من کن تو کہا، ہاتھوں پہ علی کو دکھایا۔ زبان سے من کن تو کہا، ہاتھوں پہ علی کو دکھایا، مگر مسلمانوں نے نہ نبی کی زبان پہ اعتبار کیا نہ نبی کے ہاتھوں پہ اعتبار کیا۔ تو فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، بس مجھے اتنا بتا دو نبی کی زبان اور ہاتھوں پر اعتبار کرنے والے اچھے تھے یا اعتبار نہ کرنے والے اچھے تھے؟ ایک سوال ہے محمد والے محمد پر۔ کہا یہ بتاؤ کیا رائے رکھتے ہو؟ کیا صادق بھی ہو، امین بھی ہو؟
नबी तारुफ करा रहे, अच्छा सादिक मानते हो, अमीन मानते हो, तो एक काम करो, मेरे कहने पर नजर ना आने वाले खुदा पे ईमान ले आओ। उसे भी मान लो कि जो दिखाई नहीं देता मगर सबको देखता है, कहीं नहीं रहता मगर हर जगह मौजूद है, उसे मान लो। अब इन्होंने सुना, सुनने के बाद में कहा कल सोच के बताएंगे। चले गए, अगला दिन हुआ, नबी ने फिर बुलाया, फिर आ गए। नबी ने कहा क्या सोचा, मानोगे खुदा तो बगैर देखे? कहा कल सोच के बताएंगे। फिर चले गए, तीसरे दिन फिर बुलाया, बताओ क्या राय है, मानोगे? का सोच के बताएंगे। आपने देखा आर्मी में एक उसूल होता है जो आज के माशरे में भी कहीं कहीं पाया जाता है, आपको कोई अधिकारी हुक्म दे आप इनकार नहीं कर सकते, सारी जिंदगी मत करना मगर यस करना है। ऐसे कुछ माशरे में होते हैं, काम करना नहीं मगर मना नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए, मगर मौला फरमाते याद रखना उससे दोस्ती कर लेना कि जो जबान का तेज हो मगर जो जबान का मीठा हो, कभी पास ना बिठाना। इसलिए कि याद रखना सबको राजी करना इंसान के बस की बात नहीं है, सारे अल्लाह से राजी नहीं होते। क्या कर सोच के बताएंगे। आवाज खुदा तो मेरे हबीब, इस तरह तो आज कल में परसों गुजर जाएंगे, ये अल्लाह को नहीं मानेंगे। इसलिए कि याद रखना अगर कोई इंसान बिगड़ जाए और सुधरना ना चाहे तो कायनात में कोई सुधार नहीं सकता। ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये ऐसे ही मान नहीं लाएंगे। क्या महबूब क्या करूं? कब इनसे हमारे तरीके से इकरार कराओ, जैसे हम कहे वैसे इनकी हिदायत करो, बुरा हुई नहीं। आ गए, क्या इनसे पूछो ये तुम्हारे बारे में क्या राय रखते हैं, बहुत तो सुनिएगा। कैसे इंट्रोडक्शन कराया नबी ने। नबी ने कहा बताओ मेरे बारे में राय क्या है। कहा आप सादिक भी हैं, अमीन भी हैं। गौर से सुना, हुक्म खुदा हुआ, इनसे पूछो। जब आपको सादिक व अमीन मानते हैं, इनसे पूछो खुदा है या नहीं, बस इतना पूछ लो। नबी ने उनसे पूछा अल्लाह है, इन्होंने कहा हाँ अल्लाह तो है। कहा जाओ मगर कल आना तो सबक याद करके आना। अब ये चले तो बड़े खुश थे। अब मोहम्मद 1 2 3 वाली बात नहीं करता, खाली बस इतना पूछा अल्लाह है या नहीं, चले गए खुश होकर। अगले दिन आए, का सबक सुनाओ। का आप सादिक व अमीन हैं, अल्लाह है। हुक्म खुदा हुआ, इनसे पूछो अल्लाह साहिब इज्जत है या नहीं, अल्लाह की इज्जत है या नहीं। नबी ने इनसे पूछा, इन्होंने कहा हाँ अल्लाह इज्जतदार है, अल्लाह साहिब इज्जत है। कहा जाओ कल फिर आना सबक याद करके। अभी फिर गए, फिर आए, नबी ने इनसे पूछा सबक सुनाओ कल का। कहा आप सादिक व अमीन हैं, अल्लाह है, अल्लाह साहिब इज्जत है। हुक्म खुदा हुआ, इनसे पूछो अल्लाह की इज्जत बाप के बराबर भी है या नहीं। और करें आप, अल्लाह की इज्जत बाप के बराबर है या नहीं। नबी ने इनसे पूछा, इन्होंने कहा हाँ अल्लाह की इज्जत बाप के बराबर है, अल्लाह साहिब इज्जत है। कहा जाओ सबक याद करके आना। और अब सुनिएगा जुमला, ये फिर आए, आने के बाद अब नबी ने कहा सबक सुनाओ। कहा आप सादिक व अमीन हैं, अल्लाह है, अल्लाह साहिब इज्जत है, अल्लाह की इज्जत बाप के बराबर है। अब जो इन्होंने जुमला कहा, आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब जरा इस जुमले की तकरार तो करवा कि अल्लाह साहिब इज्जत है, अल्लाह की इज्जत बाप के बराबर है। अब जो इन्होंने तकरार की, हुक्म खुदरत होगा, मेरे हबीब यही से वहदानियत का पैगाम दे दे। क्या मतलब? क्या इनसे पूछ कि अल्लाह है, कहा अल्लाह है, अल्लाह साहिब इज्जत है, कहा अल्लाह साहिब इज्जत है, कहा अल्लाह की इज्जत बाप के बराबर है, कहा अल्लाह की इज्जत बाप के बराबर है। वह नबी ने बर्जस्ते कहा इतना बताओ बाप एक है या 2 है। इतना बताओ बाप एक है या 2 है। अभी सकपटा गए, इन्होंने घबरा के कहा 1 है 2 नहीं है। पर नबी ने फौरन का सुनो, जिस तरीके से बाप 2 नहीं हो सकते, इसी तरीके से खुदा 2 नहीं हो सकता। एक सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और करे नबी दीन पहचान रहे, इस्लाम को पहचानो, इस्लाम क्या है। अब जब बल्कि तो बड़े शर्मिंदा थे, ये क्या हो गया, हमने तो सोचा नहीं था बात यहां तक आ जाएगी। इधर ये चले, उधर आसमान से फरिश्ता चला, नबी की बज़्म में आया और आस्ताने मोहम्मद बनाकर सर को झुका कर सलामी दे के कहता है, मेरे हबीब खुदा बाद सलाम कहता है, अब आवाम से गुफ्तगू न करो, गैरों से कलाम
काम न करो, बल्कि वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अब अपने खानदान वालों से कलाम करो, इन्हें बुलाओ, इन्हें दावत इस्लाम दो, इन्हें इस्लाम से आशरा कराओ। तब तारीख लिखती है 32 या 34 मर्द आए। बताओ कैसे कैसे आए? अबू जहल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, मर्दों में 5 या 7 औरतें आई। कौन कौन सी? खदीजा, फातिमा बिन्त असद, सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, 5-7 औरतें ये आ गई। नबी ने सबको खाना खिलाया। मुझे दावत नहीं पड़ी, इस्लाम कैसे पहुंचा, कैसे तारुफ कराया, खाना खिलाया। खाना खिला के नबी ने कहा देखो मैं कैसा दीन लेके आया हूं, अगर तुमने उसको मान लिया तो कायनात के तख्तो ताज तुम्हारी ठोकरों में आ जाएंगे, सारी कायनात पर हुकूमत करोगे, और तुम में से जो भी इस काम में मेरी मदद करेगा मेरा भाई होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा। इतना सुनना था, मजमे में सन्नाटा छा गया। मगर तारीख ने लिखा 11 बरस का बच्चा उठा, और बाप साहिबान पहले जुमला मैं अब तक पहुंचा रहा हूं। बच्चा उठा और उसने उठने के बाद में कहा या रसूल अल्लाह, और कह रहे मैं मदद का वादा करता हूं। जरा जुमले पे गौर कीजिएगा, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद नहीं कहा, इसलिए कह या मोहम्मद कहकर मदद का वादा करते तो नुसरत जब तक रहती जब तक मोहम्मद दुनिया में थे। नबी ने रसूल कह के वादा किया, या जब तक मोहम्मद की रिसालत बाकी है, अली की नुसरत बाकी है। और कहे या रसूल अल्लाह, नबी ने देखा बच्चा कह रहा है या रसूल अल्लाह मैं वादा करता हूं आपकी मदद करूंगा, आप पैगाम पहुंचाइए, मैं तस्दीक करूंगा और मैं लफ्जों को बदल के अर्ज करूं। 11 बरस का बच्चा उठा, उसने के बाद कहता या रसूल अल्लाह ऐलान रिसालत आप कीजिए, तस्दीक रिसालत मैं करूंगा, ऐलान जंग आप कीजिए, फतेह जंग मैं करूंगा, सूरह आप दीजिए, तबलीग मैं करूंगा, अलम आप दीजिए, पत्थर पे मैं गाड़ूंगा, हिजरत आप कीजिए, बिस्तर पे मैं सोऊंगा, निकाह आप कीजिए, तलाक मैं दूंगा। और कहे या रसूलुल्लाह निकाह आप कीजिए, तलाक मैं दूंगा, हुक्म आपका होगा, हुकूमत मेरी होगी, नबूवत आपकी होगी, इमामत मेरी होगी। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जैसे बच्चे ने ऐलान किया, नबी ने सबसे कहा आज से इसकी इताअत तुम पर वाजिब है। अली ने नुसरत का वादा किया, और अब तारीख कहती है नबी ने कलाम किया, लोगों ने सोवा उठकर चले गए। नबी भी घर से बाहर निकले, हस्बे वादा के मैं नुसरत करूंगा। बच्चा नबी के पीछे पीछे चला। देखिए शरारत बचपन का सेवर होती है, इसे आप किसी से छीन नहीं सकते। रिसालत इमामत इल्म अलग है, बचपन का तकाजा अलग है। नबी चले आगे आगे, नबी पीछे पीछे, बच्चा चला 11 साल का। चलने का आलम क्या है? जेब में खजूरें भरी हुई है, जेब भरी हुई है, एक खजूर खाता है, गुठली दूसरी जेब के अंदर रख लेता है। नबी बाजार मक्का में पहुंचे, कुछ बाजारी लोगों ने, अजहर से अभी का जुमला याद आ रहा है, जैसे बाजार में पहुंचे तो कुछ बाजारी लोगों ने मासूम का मजाक उड़ाना शुरू किया। जैसे रिसालत का मजाक उड़ाया, बच्चे को अपना वादा याद आया, उसने जेब से खजूर की गुठली निकाली और अब जो ताक कर मारी, सीने पे लगी पुष्प को तोड़ते हुए बाहर निकल गई। और करे दूसरे ने उड़ाया, निशाना ताक के मारा, हाथ पे मारी, हाथ को शल करते हुए बाहर निकल गए। 2-3 के साथ ऐसा हुआ था कान पकड़ गए। जब तक ये बच्चा साथ में है, रिसालत का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। आज भी आपने गौर किया क्या कहा? जब तक ये साथ में है कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। तो कम से कम दुश्मन भी इतना मानता है कि जब तक इमामत रिसालत के साथ में है, दीन पे हर्फ नहीं आ सकता। आज जो इस्लाम जिंदा है, ये इस बात की दलील है कि आज भी कोई इमाम है जो दीन कायम है, क्या इसका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। हमने जैसे ये बात पढ़ी, रिवायत पढ़ी कि बच्चे ने गुठली ताक के मारी, सीना तोड़ के बाहर निकल गई। का साहब ये तो देखिए, ये है उलू, ये है इजाफा, ये है बढ़ा के पेश करना। भला 11 साल का बच्चा, हाथ में इतनी पावर कि वो भी खजूर की गुठली सीने को तोड़ के निकल जाए। मैंने बारहा एक जुमला कहता हूं,
खुदा ने कुरान में उस वादे को रखा ही नहीं जिससे अहले बैत के फजाइल न छलकते हो, अहले बैत की अजमत सामने लाती हो। ऐसा हो ही नहीं सकता 11 साल का बच्चा इतना ताकतवर हो जाए कि उसके हाथ के जोर सीने को छेदता हुआ पुष्ट से बाहर निकल जाए। नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं हो सकता। कहा नहीं। मैंने कहा पढ़ो कुरान 30वां पारा सूरह फील, इरशाद होता है अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअसहाबिल फील। क्या तुमने नहीं देखा हमने हाथियों के लश्कर के साथ क्या किया, हाथियों वाले लश्कर का अंजाम क्या किया। क्या किया? कब अरसला अलैहिम तायरन अबाबील, हमने उन पर परिंदों के झुंड को भेज दिया। और उसने क्या किया? फजअलहुम कास्फिन माकुल, उसने हाथियों को चबा हुआ भूसा बना दिया। किस चीज से? बंदूक चलाई, तीर चलाया, टैंक चलाया, तैयारा चलाया नहीं, बल्कि उसके पंजे में जो मसूर की दाल के दाने से छोटी कंकर थी, और जो उसने छोड़ी लोहे के खौद को तोड़ा, न जिस सर को चीरा, न जिस सीने को चीरा, शिकम को चीरती हुई, हाथी को तोड़ती हुई जमीन के सीने में उतर आई, लश्कर को चबा हुआ भूसा बना दिया। मैंने कहा इस कंकर में या अबाबील के पंजे में इतनी ताकत कहां से आ गई कि जिसने हाथियों को भूसा बना दिया। सुनो, अगर ये गुठली वाली रिवायत गलत है तो ये अबाबील वाला वाकया भी गलत है। जो दलील वहां है वो दलील यहां है। कहते साहब ऐसा नहीं हो सकता, ये कुरान की आयत है, इसमें तो सच्चाई है। मैंने कहा फिर क्यों हुआ? क्या सुनो, अब्राहा ढाने आया था काबे को, ये काबे की हिफाजत का मामला था, इसलिए अल्लाह ने अबाबील के पंजों में इतनी ताकत दे दी कि उसने हाथियों के लश्कर को भूसा बना दिया। मैंने कहा यही तो हम कह रहे, वो बैतुल्लाह की हिफाजत का मामला था, ये रसूलुल्लाह की हिफाजत का मामला था। मोहम्मद वाले मोहम्मद नबी ने दीन तो पहचानवाया। अब हुक्म हुआ नबी दीन तो पहचानवा चुके, अब जरा दीन बना के भी पहचानवाओ, जिसे पाला है उसे भी पहचानवाओ। 28 रजब गुजरी है ना, सुनिए चंद जुमले नबी ने कैसे दीन बना के पहचानवाया। नबी मिंबर में बैठे खुतबा दे रहे, मस्जिद का दरवाजा खुला, 3 साल का बच्चा मस्जिद में दाखिल हुआ, आबा के दामन में पैर उलझा। वाकया का सुना हुआ है, कैसे पहचानवाया। पैर उलझा, बच्चा जमीन की तरफ मुराजियत फरमा हुआ। नबी ने खुतबे को तोड़ा, मिंबर से उतरे, बच्चे को गोद में उठाया, मिंबर पर आकर बैठ गए। एक सवाल मैं आपसे करता हूं, मैं यहां मजलिस पढ़ रहा हूं, अगर मेरा बच्चा आ जाए अब वो गिरे, क्या मैं उतरूंगा मिंबर से? आप नहीं उठाएंगे मेरे बच्चे को? इतना काम तो आप भी करेंगे ना, मेरे बच्चे को उठा देंगे। ये शम्मे रिसालत के परवाने हैं, नबी के सामने बैठे हैं, नबी का नवासा गिर रहा है, नबी खुतबा दे रहे हैं, यानी मजलिस पढ़ रहे हैं। आज के जमाने में लोग ये नबी ने खुतबा क्यों तोड़ा, मिंबर से खुद क्यों उतरे, किसी सहाबी ने क्यों नहीं उठाया, उठा के नबी को क्यों नहीं दिया, या अपनी गोद में क्यों नहीं लेके बैठे? याद रखना, अगर कोई आम बच्चा होता तो सहाबी उठा लेता। ये गिरने वाला इंसान आम नहीं है, बल्कि ये इमामत का बचपन है। पकड़े, अब जो इमामत का लड़खड़ाया बचपन, रिसालत बढ़ी, इमामत को सहारा दिया, गोद में दिया। अब लेने के बाद हमने खुदा नहीं की, खुतबे को जारी नहीं रखा, बल्कि गोद में लेकर कहा हाजा हुसैन फारिफू हो, ये हुसैन है, इसे पहचानो। इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, ये हुसैन चराग हिदायत है, कश्ती निजात है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। नबी ने खुतबा तोड़ा, बच्चे को संभाला और संभाल कर कायनात को पैगाम दिया। ये याद रखना, इमामत के वक्त पड़ेगा तो नबूवत सहारा देगी, नबूवत के वक्त पड़ेगा तो इमामत सहारा देगी। वो करे दोनों में से किसी पे मत पड़ेगा, इमामत पे पड़ेगा तो नबूवत सहारा देगी, नबूवत पे वक्त पड़ेगा तो इमामत सहारा देगी। यही तो सबब था जंगे ओहद में इमामत पे वक्त, रिसालत पे वक्त पड़ा तो इमामत ने हाथों में उठाया। गदीर के मैदान में विलायत की बारी आई तो रिसालत ने हाथों में उठाया। ये सवाल है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और अब नबी पहचानवा है, इसे पहचानो, ये हुसैन है, मुझसे है, मैं इससे हूं। दोनों का मिजाज एक था, दोनों की फितरत एक थी। यही सबब था
کہ جب یزید کے 50 سال کے بعد حسین کے وہ محمد کے 50 سال کے بعد اس اسلام کا یزید ٹھیکیدار بن کے بیٹھا اور اس نے اسلام کا انکار کیا، لیکن دین تھا یا نہیں؟ پہچانوایا کیسے دونوں نے ایک دوسرے کو؟ دین تو تھا، انکار کیا کیسے؟ اس نے کہا کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، کوئی نبی رسول نہیں آیا، یہ سب بنی ہاشم کا دھم تھا جو تخت و تاج کے لیے انہوں نے رچایا تھا۔ جیسے یہ انکار ہوا ساری دنیا خاموش رہی۔ افسوس تو اسی بات کا ہے لوگ تلاوت قرآن کر رہے تھے مگر دین سے بے خبر تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے مگر دین سے بے خبر تھے، حج کر رہے تھے مگر دین سے بے خبر تھے، طواف کعبہ کر رہے تھے مگر دین نہیں سمجھ رہے تھے۔ آپ کہیں گے صاحب دلیل کیا ہے؟ ارے دلیل یہ ہے کہ یزید کے انکار پہ ساری دنیا چپ کیوں رہی؟ کم سے کم کلمہ دو کو تو بولنا چاہیے تھا کہ یزید خاموش رہا، کوئی نہیں بولا۔ تاریخ نے بس ایک نام لکھا کہ اگر غیرت دکھائی تو ابو طالب کے خون نے، شرافت دکھائی تو ابو طالب کے خون نے، یزید کو للکارا تو ابو طالب کے خون نے، اپنا وطن چھوڑا تو ابو طالب کے خون نے، اپنا گلا کٹایا تو ابو طالب کے خون نے، اپنا گھر لٹایا تو ابو طالب کے خون نے۔ اور جملہ یاد رکھیے گا، حسین نے اپنی شہادت پیش کر کے زمانے کو بتا دیا، یاد رکھنا دولت کے لالچ میں کلمہ پڑھنے والے اور ہوتے ہیں اپنی دولت لٹا کر اسلام کو بچانے والے ہیں۔ ایک صلوات ہے محمد والے محمد پر۔ ساری دولت لٹائی، اسلام کو بچایا، اور اب یاد رکھے گا اس انداز سے بچایا کہ آج اتنا سے بچہ بھی کہہ دیتا ہے یزید لعنتی ہے۔ اتنا چھوٹا نہیں تھا یزید جتنا چھوٹا حسین سے ٹکرا کے 1400 سال کے بعد ہو گیا، اتنا بڑا تھا کہ 26 ملکوں میں حکومت تھی، اور کتنا حسین نے اس کو نیچا کیا، کتنا ذلیل کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں حسین نے صبر سے کام لیا، انتقام نہیں لیا، مگر میرا نظریہ الگ ہے۔ جیسا انتقام حسین نے لیا کائنات میں کسی نے نہیں لیا، ایسا انتقام لیا۔ کا سب دلیل کیا ہے؟ حسین نے ظالم سے ایسا انتقام لیا کہ قیامت تک کے لیے لفظ یزید کو گالی بنا دیا۔ کوئی شریف انسان اپنے بچے کا نام یزید رکھ کر راضی نہیں ہے، اور بڑا کے بات کہوں، لیکن کربلا سے پہلے کائنات میں چاہے جتنے فرقے ہوں مجھے اس سے بحث نہیں ہے، مگر کربلا سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک ساری کائنات میں 2 فرقے ہیں۔ ایک فرقے کا نام ہے حسینیت، دوسرے فرقے کا نام ہے یزیدیت۔ اگر کوئی تیسرا ہو تو مجھے بتانا۔ اور یہ اتنے اہم ہیں کہ اپنے ناموں سے نہیں پہچانے جاتے، اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے عمل سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس لیے میرا جملہ یاد رکھنا، لباس دیکھ کر کسی فرقے کا تعین نہ کرنا کہ یہ شیعہ ہے، امامہ دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ دین کا عالم ہے، اس لیے کہ ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ اسلام کا لباس جب بھی بھیڑیوں میں ہو رہا دین کو نقصان پہنچا دیا۔ اور کرے لباس عقیدے کی عکاسی نہیں کرتا، لباس عمل کی عکاسی نہیں کرتا، اگر کرتا تو کل کا رضوی آج کا تیاگی نہ بن جاتا۔ اور کرے دونوں ایسے جو اپنے کپڑوں سے نہیں پہچانے جاتے، نام سے نہیں پہچانے جاتے، کس چیز سے پہچانے جاتے؟ اپنے عمل سے۔ آئیے میں 2 جملوں میں بتاؤں، حسینیت کا عمل کیا ہے، یزیدیت کا عمل کیا ہے۔ ابھی فرض بھائی نے پورا سوچ بہا کہ حسین منی کا مطلب بتا رہے ہو، حسین جملہ سنیے گا، اسی کی تشریح میں بولتا ہوں، چند جملے سنیے گا۔ حسین نے ایک پیغام دیا زمانے کو کہ دیکھو بعد کربلا یہ نہ دیکھنا کہ یزید کون ہے حسین کون ہے، پہچاننے میں دقت نہ آئے، میں تمہیں پہچان بتا دیتا ہوں۔ اس لیے حسین نے جب بیعت کا سوال کیا تو یہ نہیں کہا میں تیری بیعت نہیں کرتا، بلکہ کیا کہا؟ اِنَّ مِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور کرے اب ایک کردار حسین کا ہے، ایک کردار یزید کا ہے، دونوں کردار سامنے رکھنا۔ جہاں حسینی کردار ہوگا وہاں یزید کی بیعت نہیں ہوگی۔ اور اگر مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا تو حسین کے بعد 2 فرقے ہیں، ایک کا نام ہے حسینیت، دوسرے کا نام ہے یزیدیت۔ دونوں عمل سے پہچانے کرتے ہیں۔ حسینیت کا عمل کیا ہے میں آپ کو بتاؤں،
नमाज हुसैनियत है, रोजा हुसैनियत है, हज हुसैनियत है, तिलावत कुरान हुसैनियत है, तवाफ काबा हुसैनियत है, ज़कात का निकालना हुसैनियत है, खुम्स का अदा करना हुसैनियत है, नेकियों का हुक्म देना हुसैनियत है, बुराइयों में टोकना हुसैनियत है, माँ बाप का एहतराम करना हुसैनियत है, बुजुर्गों की इज्जत करना हुसैनियत है, बेवाओं की मदद करना हुसैनियत है, यतीमों को सहारा देना हुसैनियत है, मजलूमों की मदद करना हुसैनियत है। ये तो हुसैनियत है ना, हुसैनियत शख्सियत का नाम नहीं है, ये हुसैनियत है। और सुनेगा यजीदियत क्या है? झूठ यजीदियत है, गीबत यजीदियत है, जुआ यजीदियत है, सट्टा यजीदियत है, हरामखोरी यजीदियत है, गस्ब कर लेना यजीदियत है, कत्ल कर देना है या नहीं? कत्ल कर देना यजीदियत है, किसी का माल छीन लेना यजीदियत है, किसी की इज्जत को पामाल कर देना यजीदियत है या नहीं? और मेरा जुमला याद रखना, नमाज हुसैनियत है, शराब यजीदियत है, नमाजी वहां भी बैठा हो हुसैनी है, शराबी यहां भी बैठा हो यजीदियत है। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और कहे पहचानो इन्हें, इन्ना मिसली ला युबायो मिसलहु, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। इसीलिए मासूम ने दूसरा जुमला कहा, किसी के ईमान उसके सजदों को देख के न तोड़ देना कि बड़े लंबे सजदे करता है, बल्कि इतना देखो सजदा रहमानी है या शैतानी है? अगर सजदे लंबे करता है मगर आवाम में रिस्पेक्ट नहीं है, पब्लिक के साथ उसने सलूक नहीं है, तो ये इब्लीसी सजदा है। लेकिन अगर सजदा करके बंदों से उसने सलूक करता है तो ये रहमानी सजदा है। बहरहाल दो जुमले दिए हुसैन ने, इन्ना मिसली ला युबायो मिसलहु, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। और अब हुसैन किस जैसे पेपर, ये जियारत वाले साहब पढ़ते हैं ना हर शब जुमा को, उसमें इरशाद होता है आपका हमारा बार बार इमाम कहता है, किसी और के जुमले नहीं सुनिएगा, अशहदु अन्नका किरदार हुसैन क्या है और किरदार यजीद क्या, सुनिएगा। इमाम कहते हैं अशहदु अन्नका कद अक़मतस सलात व आतैतस ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर। आप उंगली उठा के कहते हैं ना, मौला हुसैन हम गवाही देते हैं, आपने नमाजों को कायम किया, आपने रोजों को कायम किया, आपने हज को कायम किया। याद रखना, नमाज पढ़ना अलग है, नमाज कायम करना अलग है। अहले बैत ने नमाज नहीं पढ़ी, नमाजों को कायम किया है और करेगा। और उसके बाद हुसैन ने दूसरा जुमला कहा, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह, मैं इसलिए निकल रहा हूं ताकि मेरे नाना की उम्मत की इस्लाह हो जाए। यही है ना सवाल। कहां हुआ बैत का? मदीने में। हुसैन ने गला कहां कटाया? करबला में। जानते फासला कितना है? और कर रहे हैं फासला कितना है? और मौसम कौन सा है? मेरे निसे ने मर्सियों में नकल किया है, इतनी गर्मी थी कि दरख्त चनार आग की मानिंद चमक रहे थे। ऐसे मौसम में लेकर निकले ना हुसैन, ये करबला में क्यों आए? इन्ना मिसली ला युबायो मिसलाहु, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। तो वहां आए, इनकार बैयत मदीने में किया, तो यही रहकर चल कर दे, गला कटा देते, शहीद हो जाते, बात खत्म थी। ये मदीने में क्यों आए हुसैन? अगर मेरी बात पहुंच गई मैं सोचूंगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। करबला में क्यों आए? सुनिए, हुसैन करबला में जो भी आपने पढ़ा कि गला कटा के शरीयत बचा रहे हैं हुसैन, देखिए खाली शरीयत नहीं बचा रहे, गला कटा के इंसानियत बचा रहे हैं हुसैन। इसलिए कि हुसैन के साथ को महदूद नहीं किया जा सकता। हुसैन ने कायनात के ईमान को बचाया, इंसानियत को बचाया। मदीने में रहकर तो बचा सकते थे, अली ने शरीयत नहीं बचाई, हसन ने नहीं बचाई, पैगंबर ने शरीयत नहीं बचाई, हुसैन भी तो बचा सकते। मदीने से करबला में क्यों आए? 4 महीने 8 दिन मक्के में कयाम किया, फिर हज को उम्रे से बदला करबला में आ गए। आए क्यों? सवाल वहां हुआ। मसला यह था, सुनिएगा गौर से, मैंने कहा तकरीर का नतीजा पेश कर रहा हूं। बैत का सवाल हुआ हुसैन से। हुसैन ने सुना
सुनने के बाद में एक जुमला कहा, मैं मदीने में रहकर कुर्बानी नहीं दूंगा। अब वो वक्त आ गया है कि कातिल के चेहरे से नकाब को उतार दिया जाए। मैं अब कातिल को छिपने नहीं दूंगा। देखिए यहां शोरा बैठे, मर्सी खान बैठे, मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, अपना अपना अकीदा है। शोरा कभी कभी कहते थे मजबूर हो के छोड़ा शब्बीर ने वतन को। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था जो हुसैन से मदीना छुड़वा दे। वो करे जुमला तो फिर आपको खिताबत का जुमला सुनेगा जाकिरी का, इसलिए कि हम किसी ऐसे को इमाम नहीं मानते कि जब मजबूर हो, जो मुख्तार कायनात हो उसे इमाम कहा जाता है। अरे हम ऐसे को नहीं मानते जो मजबूर हो, हम तो ऐसे को मानते हैं अगर नजर डाल दे तो कालीन की तस्वीर को मुजस्सम शेर बना दे। मजबूर को नहीं मानते, किसी ने हिम्मत नहीं थी कि हुसैन से मदीना छुड़वा दे। हुसैन ने छोड़ा क्यों? तो ये कहा जाता है कि हुसैन से मदीना छुड़ाया गया और मजबूर हुसैन ने मदीना छोड़ा। तो इस ज़हन में रखिएगा इमामत मजबूर नहीं होती। इसलिए सैयद सज्जाद ने तौबा बेरिया पहन के भी कहा, मैं मजलूम हूं, मजबूर नहीं हूं। करबला से शाम तक के जुमले पढ़ लीजिए इमाम के, मजलूम हूं, मजबूर नहीं हूं। आए क्यों यहां? हुसैन ने तारीख को देखा। मैं बात रोक के आपको तारीख का आईना दिखाऊं। जरा इस खानदान के शजरे में नजर डालिए। जनाब अब्दुल्ला कौन है? रसूल के बाद हुसैन के दादा। जनाब अब्दुल्ला घर से ठीक ठाक सफर पे निकले। हुसैन करबला में क्यों आए? क्यों आके गला कटाया? मदीने में क्यों नहीं गला कटाया? इन्ना मिसली ला युवायो मिसलाहु, मुझ जैसा तुझ जैसे की बेहद नहीं करेगा। अब्दुल्ला ठीक ठाक घर से निकले, सफर पे गए तिजारत की गरज से। रास्ते में इंतकाल हो गया। मदीने में मक्के में खबर आ गई, दफन कर दिया गया। इंतकाल की वजह क्या है? किसी तारीख में पढ़ा हो तो बताना, क्यों इंतकाल हुआ? तारीख ने नहीं लिखा। पैगंबर की वफात हुई, वफात के असबाब क्या थे? सबब शहादत पैगंबर क्या था? तारीख ने नहीं लिखा, वफात लिख दिया, बात खत्म। अली के सर पे सरबत लगी, इब्ने मुलजिम का नाम सामने आया, मगर इब्ने मुलजिम के हाथों को ताकत देने वाले हाथ किसके थे? कातिल पर्दे के पीछे छिप गया, सामने नहीं आया। आसान करके बैठ चलो। हसन को जहर दिया गया, जिगर के टुकड़े कलेजे में आए। एक औरत के हाथों को इतना ताकतवर बनाने वाले हाथ किसके थे? कातिल पर्दे के पीछे छिप गया, कातिल सामने नहीं आया। लेकिन अब जो हुसैन से बैत का सवाल हुआ, हुसैन ने कहा अगर मैंने भी यहां गला कटा दिया तो जिस तरह मेरे बाबा का कातिल छुपा, मेरे भाई का कातिल छुपा, मेरे दादा का कातिल छुपा, इसी तरह मेरा कातिल भी यहां छुप जाएगा। हुसैन ने कहा अब मैं यहां गला नहीं कटाऊंगा, अपने कातिल को छिपने नहीं दूंगा। लिहाजा हुसैन ने सफर किया और ऐसे मैदान का इंतखाब किया जहां न दीवार का साया न दरख्त का साया, ऐसे मैदान का इंतखाब किया कि जहां कोई ये न कह सके हम सो गए थे, हम दरख्त के साए में थे। मोहम्मद की सीरत पे अमल करते हुए हुसैन ने उसी मैदान को बनाया। जिस तरह विलायत पहुंचाने के लिए मोहम्मद ने गदीर का इंतखाब किया, इसी तरह कातिल को पहचानवाने के लिए हुसैन ने करबला का इंतखाब किया। और करे हुसैन ने छोड़ा मदीने को, आल करबला में। अभी जो कहा जाता है कि हुसैन को घेर के करबला में लाया गया, मैं मुत्तफिक नहीं हूं। इसलिए कि इमामत में कोई हुकूमत नहीं कर सकता। मुख्तार कायनात को इमाम कहा जाता है, इमाम को कोई घेर के नहीं लाया। बल्कि जुमला कहूं, आहिस्ता कह रहा हूं, समझना तेजी से। हुसैन को कोई घेर के नहीं लाया, बल्कि हुसैन ने जितने कातिल थे या अब तक जितने कातिलों की औलादें थी उन सबको घेरा और करबला में ले आए। अब तक जितने कातिल थे, जितनी कातिलों की औलादें थी, उन सबको घेरा और घेर कर ऐसे चटिया मैदान में लाए जहां ना कोई भाग सके, ना सो सके, ना चेहरा छिपा सके। देखिए मेरी बात वाज़ेह हो जाए, दो जुमलों में मिसाल दे दूं। आपके मिसाल के तौर पर मोटर चोरी हो गया, किसान आप समझेंगे। मोटर चोरी हुआ, आप थाने में पहुंचे, आपने FIR दर्ज कराई, साहब मेरी मोटर चोरी हो गई। पुलिस आई, उसने हरकत की, चोर पकड़ा गया। जैसे पकड़ा, अब उसने उस पर जैसे धमकी दी, उसने कहा हाँ साहब मैंने मोटर खोला है, चोरी खुल गई ना। पुलिस ने और दबाया,
पता लगा इसने यूसुफपुर में मोटर नहीं खोला, इसने मोरने में भी चोरी की है, और दबाया का ककरौली में भी चोरी की है, और 3rd डिग्री दिया का जॉनसन में भी चोरी की है। अब जो और दबाया का ये चोर नहीं है, इसका बाप भी चोर था। और कह रहे क्यों हुसैन करबला में है, यही चोर नहीं है, इसका बाप भी चोर था। और दबाया का बाप ही नहीं, इसका दादा भी चोर था। अब जो 120 साल शजरा निकल के आया तो पता लगा ये चोरों का खानदान है। अब वो कह रहे ये सारा खानदान ही चोरों का है। भाई यही हुसैन ने किया। जितने कातिल थे, ये जितने कातिलों की औलादें थी, उन सबको घेरा और घेर के करबला में लाए। और जो आशूर के दिन कातिल के चेहरे से नकाब को खींचा और करे और कातिल को बेनकाब किया, तो तारीख को मजबूरन लिखना पड़ा यजीद हुसैन का कातिल, यजीद का बाप हुसैन के बाप का कातिल, यजीद का दादा हुसैन के दादा का कातिल। और करे यजीद का दादा हुसैन के दादा का कातिल। क्या आप भी कहोगे कि करबला तो शहजादों की जंग है? क्या आप भी कहोगे करबला तो खानदानों की जंग है? मैं जुमला तो पहुंचा रहा हूं, सुनो। करबला 2 खानदानों की जंग है, एक कातिलों का खानदान, एक शहीदों का खानदान। इस मोहम्मद आए हुसैन और आने के नाते का मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। और जब पे कहां कहा अलग में नहीं, जो मैंने कहा नमाज पढ़े थे, दीन समझ में नहीं आ रहा था। मगरिब पढ़ाई, ईशा की नमाज से पहले हुसैन घूम गए, मजमे को देखा, खामोशी से नहीं निकले थे कि कोई ये कहे हमें पता ही नहीं लगा, वरना हम चले जाते। ये तो तारीख की सितम ज़रीफी है। दीन को बचाए अबू तालिब का खानदान, हुकूमत करे अबू सुफियान का खानदान। ये तारीख की सितम ज़रीफी है। जिसने खून बहाया उसे कुछ न मिला, जिसने खून जमीन पे गिराया मजलूमों का, वो साहिब इख्तिदार बन गए। और कहने पलटे हुसैन सबको देखा और देखकर आंखों में आकर डाल के कहा कत्तालमून, बच्चन तुमने सुन लीजिएगा, कत्तालमून तुम जानते हो मन अना, मैं कौन हूं? मुझसे बैत का सवाल किया यजीद ने। नहीं जानते मुझे मैं कौन हूं? नहीं जानते तो सुनो, अब पहचान बता रहा हूं। यजीदियत और हुसैनियत की पहचान क्या है? मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। मन अना, जानते हो मैं कौन हूं? अना इब्न मोहम्मद बिन मुस्तफा, मैं उस नबी का बेटा हूं जिसका कलमा पढ़ते हो। अना इब्न खतीजतुल कुबरा, मैं खतीजतुल कुबरा मलिका अरब का बेटा हूं। अना इब्न अली बिन मुर्तजा, मैं अली मुर्तजा का बेटा हूं। अना इब्न फातिमतुस सहरा, मैं तुम्हारे नबी की बेटी फातिमा का बेटा हूं। तारुफ कराया। अब उसके बाद यजीद का शजरा सुनिए। हुसैन की जबानी 3 जुमलों में हुसैन ने यजीद का वाया डाटा खोल दिया। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। अब हुसैन का तबक्का तालमून, और क्या तुम जानते हो? नहीं जानते तो सुनो, वैसे यकीनन जानते हो। सुनो यजीद कौन है? यजीदुन रजुलुन फासिकुन, यजीद मर्द फासिक है। काफिर नहीं का, मुल्हिद नहीं का, मुर्तद नहीं का, मुशरिक नहीं का, मुनाफिक नहीं का। क्या कहा? फासिक है। जानते फासिक किसे कहते हैं? जो इस्लाम को जानता तो हो, इस्लाम के अहकाम पे अमल न करता हो। ये यजीद की पहली पहचान है ना। अब ये हुसैन ने पहचान दिया। अब माशरे में ऐसे कितने यजीद हैं जो चेहरे पे नकाब डाले हुए जानते हैं नमाज पढ़ना वाजिब है मगर पढ़ते नहीं है। और करें ये क्या है जो हुसैन ने पैगाम दिया? मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। यजीदुन रजुलुन फासिकुन, यजीद मर्द फासिक है। इसका मतलब यह है कि 1400 साल पहले भी जिसने दीन के अहकाम को न माना वो यजीद था। सन 2024 में भी जो हुसैन के पैगाम को न माने वो यजीद है। ये मर्द फासिक है। दूसरी पहचान शारिबुल खम्र, ये शराबी है, शराबी का बेटा है। कातिल नफ्सिल मुहर्रमा, ये बेगुनाहों का कातिल है। इसकी आस्तीनों से मजलूमों को लहू तबकता है। इसने मुझसे बैत मांगी है। मैं दीन को बचाने के लिए जा रहा हूं। तुम्हारे कानों में इस्लाम की आवाज नहीं आ रही? इस्लाम मजरूह हो चुका है, इस्लाम जख्मी है।
اسلام کہا رہا ہے اور اسلام کو بچانے کے لیے جو چلنا چاہتا ہے کوئی نہیں رکا. اب حسین نے کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے. نہیں چلنا چاہتے نہ جاؤ. اور اب یہ کہہ کر حسین نے بس آخری جملہ کہا نمازیں پڑھ رہے ہو یہ نمازیں فائدہ نہیں دیں گی، سجدے کر رہے ہو یہ سجدے فائدہ نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نمازیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، نمازوں کو بچانے کا وقت ہے. سجدے کرنے کا وقت نہیں ہے، سجدوں کو بچانے کا وقت ہے. ایک لمحہ حسین نکلے، نکل کے نانا کے روزے پر آئے. 28 رجب گزری ہے نا پرسوں. کیسے آئے سنیے گا. کسی انسان کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حسین کے رخصتی کو بیان کر سکے. سلام کرو حسین کے چاہنے والے میر انیس کو کہ جنہوں نے حسین کے رخصتی کو قلم بند کر دیا، ورنہ کسی جگر میں اتنی پاور نہیں جب حسین کی رخصتی کو بیان کر سکے یا سن کے برداشت کر سکے. نبی کے روزے پر آئے. آنے کے بعد حسین نے حسرت سے قبر کو دیکھا اور حسرت سے دیکھ کر حسین کہتے نانا وہ نواسا آیا ہے جسے زلفیں دے کر عیدگاہ تک لے جاتے تھے. وہ نواسا آیا ہے جس کے لیے سجدوں کو طول دیتے تھے. نانا سوچا یہ تھا ساری زندگی آپ کے قبر پہ چراغ جلاؤں گا، قبر کے مجاوری کروں گا، مگر نانا یہ دشمن مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتے، میرے قتل پہ درپے ہیں. میں نہیں چاہتا آپ کے مقدس شہر کی عظمت پامال ہو جائے اور میرا مقصد میرا وعدہ طفلی ادھورا رہ جائے. نانا میں دین بچاؤں گا، میرا کچھ نہیں بچے گا، مگر وعدہ کرتا ہوں اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، میں سب کچھ دے دوں گا. قریب یہ کہہ کر حسین قریب آئے، ایک ہاتھ کو قبر رسول پہ رکھا. سنیں گے. اور میر انیس کہتے ہیں کہ قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کر حسین کہتے ہیں نانا حسین کی مصیبت سنیے گا کس طریقے سے نکلے. قبر رسول پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کر حسین کہتے ہیں نانا یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر. اللہ اللہ کس زبان سے حسین کی مصیبت کو بیان کروں. نانا یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر. مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر ہے، کہیں قتل کا سامنا کہیں لٹ جانے کا ڈر. 7 بچوں کا ہے یا بادشاہی جن و بشر. تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا، اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا. اللہ اللہ حسین اپنی مظلومی بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے کرتے فاطمہ کا لال پھر دوسرا جملہ کہتے ہیں نانا آپ جانتے ہیں سب گھروں میں ہے سکوں سے ہمیں ملتا نہیں چین. اللہ اللہ حسین نانا سے شکوہ کر رہے نانا سب گھروں میں ہے سکوں سے ہمیں ملتا نہیں چین. سخت آفت میں پھنسا آپ کا یہ نور العین. ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین. ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین. اللہ اللہ سنیے گا حسین کی ہوگت. ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین. گھر میں آرام نہ جنگل میں امان ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے. اللہ اللہ جو حسین نے اتنا کہا قبر رسول کو زلزلہ آیا. ایک آواز آئی میرے لال اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، تیرا نانا خاک اڑاتے ہوئے لہر سے نکلے گا، تیرے ساتھ ساتھ جائے گا، مگر میرے لال جانے سے پہلے ماں کے مزار پہ ضرور چلے جانا، ماں سے آخری رخصت ضرور لے لینا. چاہتے حسین کیوں کہاں نانا بتائیے. میر انیس نے پھر نانا پیغمبر کے قول کو نقل کیا. میر انیس کہتے میرے لال اس لیے ماں کے مزار پہ جانا کیونکہ کل صبح سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین. شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین. صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین. کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا. اجرکم اللہ اپنے بچے کو اکیلا تو میں چھوڑوں گی میں. حسین نے سلام آخر کیا.
साथ हुए, हसन के कब्र पर आए, भैया भाई का सलाम आखिर को नोट करो, बचपन का साथी जा रहा है, कब्र से आवाज आई, मेरे गरीब बरादर खुदा हाफिज, तेरा भाई तेरे साथ साथ जाएगा। माँ के मजार पर आए और मक्तल में अजीब जुमला लिखा। कब्र के करीब आए, हुसैन पैरों से नहीं चले, जमीन पे बैठ गए, दोनों हाथों को जमीन पे टेका, घुटनों को जमीन पे लगाया। हुसैन इस तरीके से बढ़े जैसे कोई तिफल शीर खार बढ़ता है, घुटनियों के बल चलते हुए माँ की तुरबत पर आए, एक हाथ कब्र फातिमा पे रखा, हुसैन ने एक हाथ कलेजे पे रखा और रखकर अब जो कुछ कहा तो फिर उसको शायर ने बयान किया। हुसैन कहते अम्मा लहू लुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रस्म देखने चलो। अल्लाह अल्लाह, हुसैन रुखसत हो रहे, अम्मा लहू लुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रस्म देखने चलो। अम्मा ये दिल के टुकड़ों की बस्ती बसाएगा, अम्मा हुसैन अपने मदीने को आएगा। अम्मा खुदा हाफिज जिसे चक्कियां पीस कर पाला था वो बेटा जा रहा है। कब्र फातिमा से आवाज आई, मेरे लाल खुदा हाफिज, तेरी माँ तेरे साथ साथ जाएगी। फिर मीर अनीस कहते हैं, तब पर फातिमा कहती है, जा मेरे लाल खुदा हाफिज, मेरे सैयद, मेरे मजलूम मुसाफिर शबीर, हाय इस गोरे गरीबा के मुजाविर शबीर, कोई समझा न मेरी गोद का पाला तुझको, हाय आका ने मदीने से निकाला तुझको, जा मेरे लाल खुदा हाफिज। हुसैन घर में आए, फहरिस्त मुरतब हुई, खत्म करो मजलिस को सदा लो। ये काफिला चला, महमिल लाई गई, हौदज लाई गई, हमारियां लाई गई, बीबियां सवार हुई, काफिला बढ़ा, चंद कदम बढ़ा था कि चलते चलते रुक गया और फातिमा का लाल अपनी सवारी से उतरा, घर की तरफ बढ़ा। रावी लिखता है, मैंने देखा कि काफिले के पीछे एक सैलानी आबा के दामन में लिपटी हुई, असे का सहारा लिए हुए, कमर झुकाए हुए काफिले के पीछे पीछे आ रही है। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय का पहले बैठ के पीछे पीछे आ रही है। हुसैन आगे बढ़े, हाथ को पकड़ा, चूमा, सलाम किया, सलाम करके कहते अम्मा आप तो मुझे रुखसत कर चुकी है, अब क्यों आ रही है? एक मर्तबा आने वाली बीवी जानते कौन है? अब्बास की माँ उम्मुल बनीन, जिसके 4 बेटे हैं। उसने कुव्वत को समेटा, असर का सहारा लिया, सीधी खड़ी हुई और खड़ी होने के बाद हुसैन के चेहरे की ज़ियारत की और ज़ियारत करके कहती है, मेरे लाल इतना बता मैं तेरी क्या लगती हूँ, महसूस कीजिएगा एहतराम इमाम। मेरे लाल इतना बता मैं तेरी क्या लगती हूँ? हुसैन कहते हैं आप मेरी माँ है। उम्मुल बनीन कहते नहीं मेरे लाल, जब मैं अली के घर में आई थी तो मैं सहरा की कनीज बनकर आई थी, मैं तेरी माँ नहीं तेरी कनीज हूँ। मेरे लाल जा रहा है, अपनी कनीज की एक आखिरी तमन्ना पूरी कर दे। अम्मा हुक्म कीजिए, मेरे लाल चंद लम्हों के लिए अब्बास को मुझे दे दे, वादा करती हूँ तेरे सपोर्ट करके जाऊंगी, अभी देखा जाऊंगी। हुसैन ने अब्बास को बुलाया, हाथ पकड़ा, उम्मुल बनीन के हाथ में दिया, लो अम्मा आपका बेटा आपके हवाले। उम्मुल बनीन ने बेटे का हाथ पकड़ा, कब्र रसूल में आई, आकर कब्र रसूल के करीब बैठ गई। लाल बैठ जाओ, चली बैठ गई, अपना दाहिना हाथ कब्र रसूल पर रख दे। अब्बास ने दाहिना हाथ कब्र रसूल पर रखा, का बायां हाथ मेरे सर पे रख। अब्बास ने बायां हाथ उम्मुल बनीन के सर पे रखा। उम्मुल बनीन कहती मेरे लाल इतना बता हम कहां बैठे हैं? कहा रोज़ा रसूल में। तेरा दाहिना हाथ कहां है? कहा कब्र रसूल पर। बायां हाथ कहां है? आप जैसी असीमुल मर्तबत मां के सर के ऊपर। उम्मुल बनीन ने 3 मर्तबा इकरार लिया और जब अब्बास इकरार कर चुके तो तड़प कर उम्मुल बनीन ने एक जुमला कहा, मेरे लाल मेरे सर पे हाथ रख के कब्र रसूल को गवाह करके कसम खा, जब तक तेरे दोनों बाजू सलामत है ज़ैनब की चादर न छिलेगी। अजरकुम
ज्यादा न छिलेगी। अल्लाह अल्लाह चेरी ने मां के चेहरे को देखा, पेशानी को चूमा और चूम कर अब्बास कहते अम्मा, अब्बास वादा करता है जब तक बदन पे हाथ सलामत है किसकी मजाल जो ज़ैनब की रिदा को देख सके। उम्मुल बनीन ने हाथ पकड़ा, काफिले के करीब आई, हुसैन के हाथ में देखेगा जा मेरे लाल खुदा हाफिज। काफिला चला, चंद कदम बढ़ा कर फिर काफिला रुका, बस आखिरी मंजिल 2 मिनट और बस में रहमत तमाम। फिर काफिला रुका, अब हुसैन नहीं उतरे, उम्मुल बनीन का लाल अब्बास घोड़े से उतरा, उतर कर घर की तरफ बढ़ा। अब तेजी से बढ़ते हुए अपनी अबा को उतारा और उतारने के बाद हुसैन ने एक कमसिन बच्ची के सर पर डाल दिया और डालने के बाद हसरत से देखा और देखकर कहा सो रहा चचा की जिंदगी में घर से बाहर आ गई। मेरे लाल क्या तू नहीं जानती तेरा चचा गयूर है, तेरा चचा गैरतदार है, अपने चचा की जिंदगी में घर से बाहर आ गई। अगर बीमार ने अपनी कुव्वत को समेटा और समेट कर चचा को देख के एक जुमला कहा, चचा मैं जानती हूं मेरा नाम महजरनामे में नहीं है, मैं जाने के लिए नहीं आई। बेटा क्यों आई है? चचा बीमार हूं, दर्द की शिद्दत है, जिंदगी का भरोसा नहीं, कौन सी शाम सोहरा की जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए, कौन सा सूरज जिंदगी की सोहरा का आखिरी सूरज हो जाए। बेटा क्या चाहती है? चचा सीने में दिल धड़क रहा है, मुझे मेरे भैया बहुत याद आ रहा है, अगर हो सके मेरा 1.5 महीने का भैया अली असगर मुझे दे दो, सोहरा के डूबते हुए दिल को करारा जाएगा, चंद लम्हे के लिए असगर को प्यार करना चाहती हूँ। असल 1.5 महीने का बच्चा है, रबाब की हमारी को बिठाया गया, सोहरा की गोद में असगर को दिया गया। 1.5 महीने का बच्चा अब जो गोद में सोहरा की आया तो मक्तल लिखते ऐसे चिमट गया जैसे बरसों का बिछुआ। न जाने 1.5 महीने का बच्चा क्या बता रहा था, गले में नन्ही नन्ही बाहें डाली और बहन के गुलकी हो गया। कुछ देर के बाद सोहरा ने नन्हे से हाथों को गर्दन से छुड़ाया, कांपते हुए हाथों पे असगर को सामने किया, चांद सी पेशानी को देखा, मरजल बहरे आंखों को देखा, वल्लैल असगर के सुल्फों को देखा, बरगे गुल से होठों को देखा। एक मर्तबा बीमार ने असगर की पेशानी को बोसा दिया। इधर हुसैन ने देखा सोहरा पेशानी को चूम रही है, हुसैन चुप रहे। सोहरा ने दाहिने रुखसार को चूमा, हुसैन चुप रहे, बाएं रुखसार को चूमा, हुसैन चुप रहे। मगर मक्तल ने लिखा अब जो सोहरा ने असगर के नन्हे से गले को चूमा, हुसैन से बर्दाश्त न हुआ, फातिमा का लाल मुंह फेर के रोने लगा और शायद कहा हो सोहरा आखिरी मर्तबा असगर के गले को प्यार कर ले, अब ये नन्हा गला होगा और मल्ला का तीरे से शोभा होगा। बस आखिरी जुमला ज़बानों खत्म कर दिया मेरे मजलिस को। गले को छूमा, हुसैन रोए, मुंह फेर कर रोए, आंसुओं को खुश्क किया, आवाज दी रबाब अपने बच्चे को ले ले, हमें चलने के लिए देर हो रही है। रबाब आगे बढ़ी, हाथों को फैलाया, आ मेरे लाल मेरी गोद में आ जा। 1.5 महीने का बच्चा बहन की गोद से ना उतरा, अपनी बहन के सीने पे चिमटा रहा, लाख कोशिश की, असगर ने सोहरा की गोद न छोड़ी। लैला आगे बढ़ी, कुलसूम आगे बढ़ी, फरवा आगे बढ़ी, ज़ैनब आगे बढ़ी, लबाबा आगे बढ़ी, असगर ने गोद न छोड़ी। जब हुसैन ने देखा नन्हा सा बच्चा बहन की गोद को नहीं छोड़ता, बस आखिरी जुमला ज़दारो सबकी बहनों को अल्लाह सलामत रखे, सबके भाइयों को खुदा सलामत रखे। बहनों का गरूर होते हैं भाई, भाइयों के सर बुलंदी का सबब होती है बहनें। सुनेंगे आखिरी जुमला, अरे करबला में भी हुसैन का एक बेटा था, एक बेटी थी। सुनेंगे जब हुसैन ने देखा भाई बहन की गोद को नहीं छोड़ता, एक मर्तबा हुसैन ने कदमों को आगे बढ़ाया, इधर हुसैन के कदम आगे बढ़े, हुसैन के बढ़ते हुए कदमों को सोहरा ने देखा, असगर को सीने से चिमटाया, सोहरा पीछे हट गई और एक जुमला कहा, बाबा
بڑھ کے کہتے سونا مجھے اصغر کے کان میں کچھ کہنا ہے، ذرا اصغر کے کان کو میرے لبوں کے قریب کر دے۔ سونا نے ہاتھوں کو اٹھایا، اصغر کے کان قریب کیے، حسین نے کچھ کہا، بچے نے باہوں کو گلے سے نکال دیا، حسرت بھری نظروں سے بہن کو دیکھا، زبان بے زبانی سے سلام حاصل کیا۔ سونا خدا حافظ، اب روز قیامت ہوگی، بہن سے بھائی کی ملاقات ہوگی۔ علماء لکھتے ہیں حسین نے اصغر کے کان میں کہا، اے میرے لال اگر مدینے رہ گئے حسین کس کے لیے سوال عام کرے گا؟ علماء کا تیر گردن پہ کون کھائے گا؟ لٹ گیا مدینہ، چلا گیا قافلہ، روتی رہ گئی سورا۔ أي منقلب ينقلب رزا بقضائه وتسليما بأمره إنا لله وإنا إليه راجعون۔ معبود کے واسطہ محمد والے محمد کا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، جو ہاتھ پہ بارگاہ میں بلند ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔